student, welcome to my YouTube channel. So next topic of chapter 2 is electromagnetic radiation. तो electromagnetic radiation ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਨੇਮ ਜਿਹਦਾ ਜੇਮਸ ਕਲੈਰਕ ਮੈਕਸਵੈਲ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਇਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਆਫ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਆਫ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਵ। ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰੂਗੀ ਇਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਆਫ ਵੇਵਸ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਉਹ ਵੇਵਸ ਜਾਂ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਤੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੀ ਵੇਵਸ ਵਿਚ ਆਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਬੋਥ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ electric field and magnetic field is called electromagnetic radiations or electromagnetic waves। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਵੇਵ ਨੰਬਰ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੇਵ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਵੇਵ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਹ ਪਲੱਸ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਅਪਰ ਫੇਸ, ਆਹ ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪਾਰਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਲੱਸ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਰ ਫੇਸ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੈਸਟ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਾਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਫ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਰਫ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਫੇਸ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਫੇਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕ੍ਰੈਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਅਰ ਫੇਸ ਹੈ ਮਾਈਨਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰਫ, ਓਕੇ। ਤੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸਟ ਇੱਕ ਟਰਫ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਫਸਟ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਲੈਮਡਾ। ਤੋ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਐਡਜਸੈਂਟ ਕ੍ਰੈਸਟ, ਇੱਕ ਆਹ ਕ੍ਰੈਸਟ ਹੋਊਗੀ ਐਡਜਸੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋ ਐਡਜਸੈਂਟ ਕ੍ਰੈਸਟ ਔਰ ਦੋ ਐਡਜਸੈਂਟ ਟਰਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਟੂ ਐਡਜਸੈਂਟ ਕ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਟੂ ਐਡਜਸੈਂਟ ਟਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦਾ, ਓਕੇ। ਤੋ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, distance between two adjacent crest or trough is called wavelength। तो wavelength ਨੂੰ ਲੈਮਡਾ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਨ ਮੀਟਰ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲੀ ਮਾਈਕਰੋਨ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਨੋਮੀਟਰ 'ਚ, ਪੀਕੋਮੀਟਰ 'ਚ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। SI ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਟਰ। ਤੋ 1 ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਜੇ 10⁻10 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕਨਵਰਜਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਮਿਲੀ ਮਾਈਕਰੋਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10⁻⁻9 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਨੋਮੀਟਰ 'ਚ 10⁻⁻9 ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਪੀਕੋਮੀਟਰ 'ਚ 10⁻12 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀਸ ਕਨਵਰਜਨਸ, ਓਕੇ। ਤੋ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵੇਵ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਵੇਵ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੰਘੇਗੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ।
कि एक पॉइंट आ मार्क कर लिया, इस पॉइंट चो कितनी बार वेव 1 सैकेंड च लंघ रही है, ठीक है। 1 सैकेंड च कितनी बार इस पॉइंट चो पास होएगी उन्होंने आपां कहते हैं फ्रीकुएंसी। फ्रीकुएंसी नू न्यू ना लिखते हैं, दिस इज न्यू, वी नहीं हुंदा, न्यू कहते हैं इनू। तो फ्रीकुएंसी की डेफिनेशन की होगी, द नंबर ऑफ वेव्स विच पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सैकेंड। एक पर्टिकुलर पॉइंट चो कितनियां वेव्स पास होणगियां, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीकुएंसी। तो फ्रीकुएंसी के यूनिट जिहड़े हुंदे आ दैट इज़ पर सैकेंड, या हर्ट्स भी मेयर करते हैं आपां फ्रीकुएंसी नू। सैकेंड आ जांदा वेलोसिटी। वेलोसिटी इज़ डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव इन 1 सैकेंड। हुण मेरे को 1 सैकेंड का टाइम सी, 1 सैकेंड च कोई वेव जिन्ना डिस्टेंस कवर करेगी इन्ना डिस्टेंस भी कवर कर सकती है, टोटल डिस्टेंस इत्थे तक भी डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो टोटल डिस्टेंस जिन्ना उन्हें 1 सैकेंड च कवर किया दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के यूनिट होंगे हैं मीटर पर सैकेंड, ओके। फोर्थ वन इज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज़ हाइट ऑफ क्रैस्ट, अपर फेस क्रैस्ट की कितनी हाइट है और ट्रफ की कितनी डेप्थ है। डेप्थ हमेशा हुण लोअर फेस है तो वो डेप्थ ही कंसिडर करांगे, कितनी डेप्थ ट्रफ की है, हाइट कितनी है क्रस्ट की, उन्होंने आपां एम्पलीट्यूड का नाम दिंदे हैं, ओके। नैक्सट वन इज़ वेव नंबर। वेव नंबर नू न्यू बार ना डिनोट किया जाता, वेव नंबर नू न्यू बार ना डिनोट किया जाता। वेव नंबर इज़ कि अपने को जिहड़े 1 सेंटीमीटर एरिया पर सेंटीमीटर एरिया वेव कंसिडर कर लो, वेव है पर सेंटीमीटर एरिया, या इन्ना एरिया कंसिडर कर लो कि पर सेंटीमीटर एरिया इन्ना होएगा। ये कितनियां वेवलेंथ आणगियां, मतलब किन्नियां क्रस्ट, दो एडजस्टेंट क्रस्ट के विचकार डिस्टेंस आएगा, किन्नियां ट्रफ के विचकार डिस्टेंस आएगा। तो वो उन्होंने आपां कहते हैं वेव नंबर नू आपां न्यू बार ना डिनोट करते हैं, न्यू बार आ जिहड़ा मैं डैश का साइन पा रही हूँ न्यू उत्ते, दैट इज़ कॉल्ड बार। तो एक पर सेंटीमीटर के एरिया च कितनियां वेवलेंथ आ, मतलब डिस्टेंस कितना है। तो न्यू बार का रिलेशन होंदा 1/λ। ये ऑल्सो इनवर्स ऑफ वेव नंबर, सॉरी वेव नंबर इज़ इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। तो एक रिलेशन होंदा, हुण एक दो रिलेशन है जिहड़े न्यूमेरिकल च यूज़ होंदे आ, दैट इज़ फस्ट वेव नंबर का वेव लेंथ नाल रिलेशन। वेव नंबर इज़ रिवर्स ऑफ वेव लेंथ 1/λ लिखते हैं। सैकेंड अपने को जी वेलोसिटी होंगी है, वेलोसिटी नू सी ना डिनोट करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू लैमडा इंटू फ्रीकुएंसी। तो आपां इत्थे फ्रीकुएंसी फाइंड कर सकते हैं, फ्रीकुएंसी इज़ c/λ। अगर फ्रीकुएंसी इधर आते हैं लैमडा उधर जाके c/λ। तो हुण c/λ नू मैं लिख सकती हूँ c इंटू 1/λ। तो 1/λ किहदे इक्वल सीगा, न्यू बार दे उपर रिलेशन किया, 1/λ इज़ इक्वल टू न्यू बार। तो मेरे को एक नवा रिलेशन आ गया, दैट इज़ फ्रीकुएंसी इज़ इक्वल टू सी न्यू बार, ओके। तो इन्हां रिलेशन के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल गिवन है कि येलो लाइट अमिटेड फ्रॉम सोडियम लैंप है, वो अपने को लाइट अमिट हो रही है जिहदी वेवलेंथ हैगी 580 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ की गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, फाइंड की करना फ्रीकुएंसी और वेव नंबर। वी नो जी आप वेवलेंथ का SI यूनिट इज़ मीटर, तो आप पहला नैनोमीटर नू 580 नैनोमीटर नू अपने मीटर च चेंज करना किदा 10⁻⁹ नाल मल्टीप्लाई करके, ये मेरे को आ गई वेव लेंथ। सैकेंड थिंग वेव लेंथ आ गई मेरे को, वेव लेंथ कितनी आ गई, लैमडा इज इक्वल टू 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। तो वेव नंबर आप फाइंड कर सकते हैं इतों, वेव नंबर कि इक्वल आ जाएगा 1/580 इंटू 10⁻⁹ मीटर इज़ वेव नंबर, ओके। तो इनू जो आप सॉल्व करांगे तो यदी वैल्यू आएगी 1.72। जो इनू सॉल्व करांगे 1.72 यदी वैल्यू आएगी 1.72 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि मीटर इनवर्स इज़ यूनिट ऑफ वेव नंबर।
तो ये 1.7 10⁻⁶ ये पावर्स आईਆਂ पॉइंट शिफ्ट करके ओके जो तुम सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से उस अकॉर्डिंग आ जाएगा। नैक्सट इज फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रिक्वेंसी इज स्पीड इंटू वेव नंबर। स्पीड लाइट की होंगी है 3 × 10⁸ स्पीड इज 3 × 10⁸। न्यू बार जोड़ा वेव नंबर से अपने को वेव नंबर आप लिख सकते हैं 1/580 × 10⁻⁹ तो जी पावर अगर 10⁻⁹ नीचे आ तो ऊपर जाके ये प्लस दी हो जाएगी 10⁹ हो जाएगा। 8 + 9 तो अपने को 3 × 8 की पावर 17 हो जाएगी डिवाइड बाय 580 ओके। तो जो इनू तुसी सॉल्व करते हैं अपने को आंसर आता 0.005 × 10⁻17। पॉइंट शिफ्ट करो, एक पॉइंट शिफ्ट करांगे 2 3 पॉइंट शिफ्ट किए अपने -3 कर दो तो आंसर आ गया अपने को 5 × 10⁻14 आ गई फ्रिक्वेंसी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। आई होप थानू समझ आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।